we'll move forward with phasor analysis. Now this is a very important topic regarding AC because अगर phasors आपके clear है then obviously आप AC में कोई भी problem ले आप वो easily कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ वारियह ज़्यादा important। देखो बच्चा, हमने already AC को by means of sinusoidal functions represent किया है mathematically, शायद कोई मुश्किल ना। And we also know that these sinusoidal varying entities, whether we are using I is equal to I naught sine of omega t, or we are using I is equal to I naught cos of omega t, both of these entities, sine हो या cos, these are revolving entities. मैंने आपको कहा sine function can be represented by a circle. And whenever we are having a revolving entities, they obviously involve an angle. है कि नहीं? साइन किसी आर्गुमेंट पे काम करता है ओमेगा टी पे, जिसको हमने फेज का नाम दिया था। लेकिन फेज है क्या? ये असली एंगल। शाकिर ना, आप देखो, अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इस साइन को, हम साइन की एनालॉजी लेते हैं सर्कुलर मोशन में, तो मैं ये कह सकता हूं ना, पहले मैक्सिमम, फिर वापस कम, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस जीरो। वही तो होता है। अच्छा कि ना? एंड therefore what we are seeing that anti-clockwise direction में we can easily represent the phase by means of an angle। ठीक, circular motion के एतबार से we can represent this sinusoidal function, ठीक है, चाहे साइन हो या cos। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट्स है, अब इनमें ऑब्वियसली इनमें फेज है, इनमें एंगल है, और इनमें ये साइन फंक्शन है। इस कैसे कराएं? We try to represent these sinusoidal functions by means of revolving vectors. कौन से vectors? Revolving vectors. And these revolving vectors are called as phasors. क्या है? Phasors are revolving vectors which we use to represent what? The sinusoidally varying entities. Obvious सी बात है, हमारे पास EMF एंड करंट दोनों साइनोसाइडली वायरिंग। हाँ, कभी फेज में होंगे, कभी फेज में नहीं होंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आपका सर्किटल एलिमेंट कैसा है, वेदर इट इज एन इंडक्टर, वेदर इट इज अ कैपेसिटर, वेदर इट इज अ रेजिस्टर। ठीक है। लेकिन उस एतबार से मैं ये कह रहा हूं कि ये फेज डिफरेंस जो है इनके बीच, या फेज डिफरेंस इनके बीच नहीं है, एज इन केस ऑफ ए रेजिस्टर। ठीक, उस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वी आर यूजिंग अ पैरामीटर, वी आर यूजिंग एन फिजिकल एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज अ फेजर। फेजर्स आर शाबाश revolving vectors which we use to represent shabash alternating currents and EMFs in a plane. ठीक है? Why do we use phasors? They are revolving vectors, and we know that sinusoidally varying entities shabash are revolving entities, है ना? And revolving entities obviously involve an angle, and therefore we have a technique that we graphically represent these entities. We represent the peak values by a line. एक लाइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? The peak value, the length of the line will let you know कि peak value कितना था, ठीक है? And the direction of the arrow will let you know कि what was the phase. ठीक है? हम ये एंगल कैसे मेजर करते हैं? हम ये एंगल मेजर करते हैं अगर ये किसी ग्राफ पे डालना हो, से फॉर एग्जांपल हमें ये रिप्रेजेंट करना हो, I is equal to I naught sin of omega t, ठीक है? What we do, हम इसके पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे रिप्रेजेंट? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है इसका? I naught। We will use a line जिसकी लेंथ होगी कितनी? I naught के बराबर, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो लाइन जो इंक्लाइंड होगी with the x axis, it will be inclined with the x axis at an angle which will be equal to what? The phase, the angle will represent the phase of the sinusoidally varying entity. यानी कि, but remember your angles must be measured in anti-clockwise direction. Yes, समझे था? Now this diagram which represents your shabash sinusoidally varying entity, the current and the voltages by means of a vector representation. It is a kind of a vector representation. Shakir na? This diagram is called as phasor diagram. That's one. Phasor diagram. समझ गए कि नहीं? Yeah, ठीक है। So go like phasor definition. Phasor, shabash. Phasors are
revolving vectors which are used to represent shabash alternating currents and EMFs in a plane. ये जरूर है समझ क्या है why are we using phasors? They are revolving entities. The sine and the cosine functions, they are again revolving entities. They are involving an angle. अब ये एंगल जो है वो फेज था. हमने क्या किया, हमने एक लाइन ली जिसका मैग्नीट्यूड आपका पीक वैल्यू होगा, ठीक है, पीक वैल्यू द एम्पलीट्यूड, ठीक है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक, एंड जो लाइन किस एंगल पे इंक्लाइंड होगी दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, द फेज. ठीक है, समझ गए कि नहीं? एंड दिस ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम. क्या लिखा हुआ आपने? Phasors are revolving vectors which are used to represent alternating currents and voltages in a plane. Full stop. Full stop. The graphical representation. The graphical representation of alternating current and voltage as phasors मुझे तो पता फेजर क्या है, ठीक, as phasors is called as phasor diagram. The graphical representation of alternating currents and voltages by means of phasors is called as phasor diagram. Therefore, this is a phasor diagram. जिसमें हाँ क्या मान लिखे आप, the length of the line represents the peak value. ठीक है कि नहीं? ये अच्छा कि ना? The length of the line represents the peak value, while as shabash the angle measured in anti-clockwise direction, while as the angle measured in किसमें? Anti-clockwise direction represents क्या? Angle. Represents phase. Represents phase. ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? या ठीक है? अब देखो, why are we using this? What is the advantage of representing graphic? What is the advantage of giving this vector-like representation to your sinusoidally varying entities? These are sinusoidally varying entities, and we are giving a vector-like representation to them, ठीक? By means of a line, and that line is inclined at an angle which represents the phase, ठीक? सबसे पहली चीज ये कि हमें इसका पहला जो जबरदस्त एडवांटेज है हम वेक्टर-like ट्रीटमेंट से, वो ये we can easily find what is the phase of the entity. कोई भी एंटाइटी हो, हमें डायग्राम से ही समझ आ जाएगा कि भाई क्या है, इसका फेज कितना है. पहली चीज हमें यह भी समझ आ जाएगा कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेरिएशन क्या है. वो इंस्टेंटेनियस वेरिएशन क्या गई समझ में इनका, ये समझो मेरी बात. हमने अभी एक say for example we have got I is equal to I naught sin of omega t. ठीक है, अगर हमें ऑलरेडी कोई वेक्टर डायग्राम दी गई होगी, फेजर डायग्राम से फॉर एग्जांपल ये है फेजर डायग्राम I नॉट और ये बोला गया है ये है से ओमेगा टी. ठीक है, अगर मैं माना यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट एट से टाइम t इक्वल टू किसी पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक, तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑब्वियस सी बात है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा. से फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स पे आप ये वाली लाइन आ गई मुझे, क्योंकि मैं 2 इसको वैल्यू दूंगा, ओमेगा मुझे पता होगी, 2 into दिस विल बी सम एंगल एंड मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया होगा, है ना. लेकिन मैं क्या आज ये लाइन है ना, ये लाइन इट रिप्रेजेंट्स ओनली द पीक वैल्यू. मुझे मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखे, देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू डायग्राम से डायरेक्ट कैसे निकलेगा. बेटा यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द वर्टिकल एक्सिस, बिकॉज़ दिस इज अ ग्राफ बिटवीन I and T. ठीक है कि नहीं. व्हाट यू विल डू इज, शाबाश क्या कह रहा हूं मैं, करंट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड योर टाइम विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, वही समझ. अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको निकालना हो क्या, शाबाश,
अगर आपको निकालना हो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस वैल्यू will be the instantaneous value of the current or the voltage at that particular time. Which say at time t equal to 0, at time t equal to, जब टाइम t equal to 0 हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कोई करंट का वैल्यू है? यहां से इक्वेशन देखो, साइन 0 0 होता है, करंट का कोई भी वैल्यू नहीं, कोई, क्योंकि इस पे कोई परपेंडिकुलर नहीं पड़ी। वहां इतनी विशु मगजन है इसका, इतनी बड़ांची आवा ये तो तम तो विशु ये लाइन युता है और खसी तूता खसी ग्रीन है और खसा एक वक्त आएगा ना कि रेड कंप्लीटली ऐसे आएगा, सपोज ये तो, मगर सो ऐसा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, मींस पीक वैल्यू। समझिए, उसके बाद तो वही होता है ना, पीक के बाद वापस साइन गिरता है और फिर आप और परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, जितना इधर इधर लाइन गिरेगी उतना आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू वापस कम हो जाएगा। समझ तो रहा? उसके बाद आपकी लाइन जो है वो किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगेगा जब तक वापस कहां पहुंचेगा, मैक्सिमम पे, एंड देन फाइनली इट विल कम बैक। देयरफॉर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, आप क्या करेंगे, किस पे, वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करें। समझ इधर आ, एडवांटेज नंबर फर्स्ट, एडवांटेज नंबर फर्स्ट क्या बोना गोल्ड एडवांटेज, शाबाश। The advantage number first is that the instantaneous value of the alternating current and EMF, the instantaneous value of the alternating current and EMF shabash, can be found by drawing a perpendicular on the vertical axis. By drawing a perpendicular on the vertical axis. ठीक है? And the length, या ये अब क्या बना, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, अगर मैं यहां से इधर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से यहां तक क्या बोलते हैं इसको, हाँ मुंतज पढ़ा है आपने, एक वेक्टर अगर है उसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे, इसको क्या बोलते हैं फिर, इतनी लेंथ, प्रोजेक्शन चीज ना। Therefore, the length of the projection on the vertical axis will give the instantaneous। देखो ये खुद भी समझ आएगा, कुछ यहाँ पर त्राड़ो आई ना, ये आई नॉट है ना, ये क्या बने, ये एंगल है, मेरा वेक्टर बताओ, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, अगर ये एंगल है तेल कुछ ये पड़ी होता आई नॉट cos ओमेगा t है कि नहीं, और अगर ये है, ये कितना है फिर, ये आई नॉट हो गया ना, वही हमें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वही होता है। अब इस तरह ना, you draw a perpendicular on the vertical axis, the length of the projection will give the instantaneous value of the alternating current or EMF. समझ गए कि नहीं? The length of the projection, the length of the projection gives क्या? The length of the projection will give the instantaneous value of the current or EMF at that particular instant. ठीक है? अगली एडवांटेज, अगर हमने दो एंटाइटीज को रिप्रेजेंट किया, देखो यहां से, अगर हमने दो एंटाइटीज को रिप्रेजेंट किया एक ही फेजर डायग्राम में, हम उस डायग्राम से ही समझ ले सकते हैं कि व्हाट इज द विच ऑफ द एंटाइटी इज लीडिंग और विच ऑफ द एंटाइटी इज लैगिंग। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेजर डायग्राम है, इस फेजर डायग्राम में मुझे कह रहा है भाई, एक लड़का कह रहा है कि भाई यह करंट आई नॉट, ठीक, या पोशी वोल्टेज वी नॉट, वन या ब्रोट कुशी पाथ कुशी, शाबाश। मुझे एंगल मेजर करना है, फेज डिफरेंस विल बी द, फेज डिफरेंस अगर पॉजिटिव होगी तो मुझे समझ आएगा कौन आगे है कौन नेगेटिव, कौन पीछे, हमने पढ़ा ना फेज डिफरेंस, phi1 - phi2 इज द फेज डिफरेंस।
अब डायग्राम से डायरेक्ट समझ आ सकता है क्योंकि एंगल विल गिव यू व्हाट, द फेज, है कि नहीं। देयरफॉर अगर मुझे इसका एंगल चेक करना हो, से द एंगल इज दिस φ1, ठीक। लेकिन इस वोल्टेज के लिए अपर्चुलर वोल्टेज आपकी पीक वैल्यू V0, लेकिन उसका एंगल कितना है फिर, ये इतना φ2। ऑब्वियस सी बात है φ2 इज मोर देन, अब जिसका फेज ज्यादा होता है वो आगे होता है कि पीछे होता है, आगे होता है। देयरफॉर यहां समझ आएगा डायरेक्ट दैट शाबाश वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय सम फेज डिफरेंस। वो कितनी है फेज डिफरेंस, शाबाश φ2 माइनस φ1, ये छु बासन 90 छु, बासन छु 90 के मानक दैट इज इक्वल टू π/2 तेल है कि वो ये द वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90। तलावन इक्वेशन क्या आज लिया खद, शाबाश इक्वेशन बताओ, इक्वेशन इंस्टेंटेनियस, हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट, अब हमें फेजर डायग्राम थी, हम इस फेजर डायग्राम से डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं वापस। शाबाश, क्या करो याद खतर क्या करा, इक्वेशन लिखा दो I0 के लिए, करंट के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, हाँ मनु I इज इक्वल टू I0, हाँ साइन ऑफ व्हाट φ1, है ना। लेकिन मैं वोल्टेज के लिए क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू V0, हाँ साइन ऑफ व्हाट φ2, मगर φ2 जो है φ2 है क्या, लेकिन इट इज इक्वल टू φ1 प्लस 90, है ना। तो कब लेकिन V0 साइन ऑफ शाबाश φ1 प्लस, या समझे तरान तो इक्वेशन करते तरह समझ φ1 लेकिन ये उससे आगे चला गया, therefore voltage leads the current by phase difference। ठीक है, ये ठीक है कि सो फेजर डायग्राम से डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनसॉइडली वेरिंग एंटिटीज। ठीक है, हाँ कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, करंट को रिप्रेजेंट किया ना, इसमें करंट वोल्टेज भी इसी पे, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, यहां तक वो करंट है, यहां तक वोल्टेज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, करंट भी इसी पे वोल्टेज भी इसी पे, लेकिन दोनों एक का पीक I0 है, एक का पीक V0, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, 0। सो समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा। तीसरी फेज, अच्छा ये पहली थी, दूसरी ना लिखो, दो तो लिखी, तीसरी दूसरी नहीं लिखी। We can easily find the phase difference. We can easily, अच्छा you need time axis का यहाँ पर हम क्या है, this is simply x axis, ठीक है, हम एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम ना क्या, टाइम अगर हम सोचो अगर वो साइनसॉइडल फंक्शन पूरा हो उस पर टाइम भी लगेगा, यहाँ से करंट होती है, यहाँ से उस पर टाइम होता है, ठीक है कि नहीं। We can easily find the phase difference between two sinusoidally varying entities। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज देखो बेटा, जिस सर्किट में ऐसे एलिमेंट्स लगे होंगे, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, उस सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर होती है ना, वो रेजिस्टेंस भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमने फेजर्स की मदद ली। इंशाल्लाह इसके बाद आपको समझ आएगा, when I'll try to represent the net resistance offered by an RC circuit, that is called as impedance। क्या सुना, impedance तो resistance ही, मगर इसे सौ resistance which will be offered by शाबाश the capacitors and the inductors, ठीक है, in combination with resistors as well। तो नेट रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी उसको निकालने के लिए भी हमें क्या लगता है जरूरत, अभी वो मैं नहीं दिखाऊंगा, जब वो आ जाएगा तब आपको मैं बताऊंगा फेजर से ही वो भी निकालते हैं, ठीक है। लिखो तीसरा पॉइंट, दैट द नेट इंपेडेंस ऑफ एन LRC सर्किट, द नेट इंपेडेंस, the net impedance of an LRC circuit can be easily found by using phasor analysis, ठीक है। चला बह दिम तुम जो इक्वेशन बह वन बह वुच तह मज है क्या कह रिप्रेजेंट कर फेजर्स में आराम से, मैं इक्वेशंस दूंगा, आप फेजर्स बनाओ उनके, ठीक है।
यहां देखो इक्वेशन आपके पास है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 and V is equal to V naught sin of omega t. ठीक, बेशो I is equal to I naught sin of omega t, मगर V is equal to V naught sin of omega t minus pi by 2. जरा कोशिश करो डालने की इनके फेजर्स, शाबाश। मतलब जिगरा इसमें पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पहले v का रिप्रेजेंट, क्योंकि यहां पर है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, आगे से ना प्रॉब्लम फिर पीछे जाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें जो पहले बेसिक होगा फिर जिसको ऐड किया होगा वो बाद में डाला करो, ठीक है। यहाँ बेसिक क्या है? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से इतना है तो ये आ गया आपका वी नॉट, ठीक है ना, ये ओमेगा टी, ठीक है। व्हाट अबाउट करंट? हाँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी पे 90 एंगल जाना है आगे, यानी कि इधर दिस इज योर आई नॉट, समझे तरह? ये एंगल आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई, समझे तरह? ठीक है। तो यहां बताओ यहां क्या करेंगे? पहले क्या डालेंगे यहाँ? गुड क्या रहो आई रहो, समझिए तरह? गुड आई क्या इसके ओमेगा टी से मेजर करूं साहब, ये आई नॉट आ गया। व्हाट अबाउट दिस नाउ? ओमेगा टी तेल कैश करूं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अभी था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आपने ओमेगा टी पे 90 आगे की तरफ डाला, अब शाबाश। तो आप ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इधर की तरफ देंगे, दिस एंगल इज 90, तो ओमेगा टी से पीछे जाना था ना 90। अब देखो समझो मेरी बात, ये एंगल कितना है? ये पूछो, एंगल से मेजर करा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो होता है पॉजिटिव एंगल, क्या आसान होता है। अब ये एंगल देखो पहले कितना है, समझना। ओवरऑल ये है 90 पाई बाई 2, हाँ, मगर उसमें से काटा गया कितना? ओमेगा टी, है ना, मगर ये हो गया इतना एंगल। मगर जब आप इस एंगल को मेजर करोगे तो ये पटपाकुन योकुन अफसोस मेजर एंगल करते हैं ऐसे, लेकिन वो चुने ये से है एंगल, या क्या बोल सके वो, या तो समझ ये बड़ी ओवर, अगर ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, तो ये आगे माइनस आएगा ना। जरा देखो ये कितना आ रहा है वापस, ओमेगा टी माइनस, समझ तो लो, उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फेजर एनालिसिस में लोगे आप क्या? पॉजिटिव। देयरफॉर ये क्लॉकवाइज आ गया ना, ये क्या है? नेगेटिव एंगल, जो भी एंगल है वो माइनस लिखना है, माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में लिखते हो ना माइनस थीटा। इफेक्टिवली यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं माइनस थीटा चाहिए पाई बाई 2, तो वो कितना आ रहा है? ओमेगा टी माइनस, तो वही तो था हमें रिप्रेजेंट करना, ठीक है कि नहीं? सो आप कोशिश करें कि आप इक्वेशन से ग्राफ्स वापस डालें और ये फेजर एनालिसिस से वापस इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो ये फेजर एनालिसिस है इसमें हमारे पास सर्किट्स डिफरेंट काइंड्स के हैं। वी कैन हैव सिंपल सर्किट्स इन अ वे दैट सिर्फ जो रजिस्टर एसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ जो कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ जुड़ा है, सिर्फ जो इंडक्टर एसी सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, या वी कैन हैव कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जिनमें इनकी कॉम्बिनेशंस होगी, आर जुड़ा होगा एल के साथ, एल जुड़ा होगा सी के साथ, सी जुड़ा होगा आर के साथ, ठीक है, या तीनों आपस में जुड़े होंगे, ठीक। तो वी हैव टू स्टडी दीज circuits individually and then try to find out what are their phasor diagrams, ठीक है कि नहीं? तो चलिए we will go with simple circuits first. हमने एसी में पहले ही बात की है, मैंने आपको कहा कि करंट वोल्टेज के साथ इंक्रीज होती है रेजिस्टर में, सही है, लेकिन एसी में ये हो भी सकता है नहीं भी हो, इट डिपेंड्स ऑन द सर्किटल एलिमेंट। जिसमें मैंने आपको कहा था इंडक्टर यूज्ड टू, उसमें फेज डिफरेंस है 90 का, मगर हमें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। और फिर मैंने कैपेसिटर की बात की, मैंने बोला कैपेसिटर में करंट ही आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है,
तो वो क्यों था, वो उस दिन हमने कहा था लीड एंड लैग की बात, जब हमने फेज डिफरेंस की बात की थी। लेकिन आज आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस प्रोडक्ट यू वांट, ठीक है। तो चलिए सिंपल सर्किट्स हाँ 100% आई। तो चलिए सिंपल सर्किट्स में पहला सर्किट जो है इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है we'll be using an AC source, ठीक है, we'll be using an AC source along with a resistor, ठीक है। Now see, रेजिस्टर में जब भी कोई पर्टिकुलर एक ही AC सोर्स चलेगा, याद थे जमीन का, दैट प्योरली जिस तरह से करंट इंक्रीज होएगी उसी तरह से वोल्टेज भी इंक्रीज होएगा, यानी कि देयर विल बी नो फेज डिफरेंस व्हेनेवर विल बी सीइंग एन रेजिस्टर बीइंग यूज्ड अलोंग विद एन एसी सोर्स, ठीक है। यानी कि अगर इस एसी सोर्स में से करंट जो है वो निकल रही है इन दिस फैशन, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो जाओ क्या, बिकॉज रेजिस्टर्स में फेज डिफरेंस नहीं होता है, व्हाट वी विल से जो वोल्टेज इसमें जो चलेगी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी वी नॉट, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा मगर साइन ऑफ शाबाश ओमेगा टी। बेचे जो दिमाग में आपका जब भी फेजर डायग्राम्स हम इस्तेमाल करेंगे, देखो यहां ओमेगा यहां पर भी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इना फ्रीक्वेंसी अथवा ओमेगा 1 to ओमेगा 2 दिल से प्रॉब्लम, ठीक है। इवन इफ आप दो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडक्टर को भी कैपेसिटर को भी इकट्ठे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेहरबानी करके आप फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। तरह ये तो इक्वेशंस होगी। ग्राफ क्यों थी, ग्राफ पहले बताओ, सिंपल ग्राफ, हाँ करंट के लिए क्या ग्राफ होगा विद टाइम, करंट का ग्राफ विद टाइम, हाँ इट इज अ साइनसॉइडली वेरिंग ग्राफ विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ आई नॉट, से आई नॉट इधर है, चलिए ग्राफ इस पर ऐसे आएगा। व्हाट अबाउट वोल्टेज, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना, चलो सपोज वो इधर है वी नॉट, ठीक, चल क्या कैसे, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, ओमेगा टी, देयरफॉर जिस तरह both will reach peak value simultaneously, both will reach minimum value simultaneously, यानी कि both will increase and decrease simultaneously, समझ चुका ना। ये देखो ग्राफ ऐसा आएगा इधर, लेकिन ये भी इधर, फिर ये इधर चल रहा है, समझ गए कि नहीं, ये ठीक है। ग्राफ से समझ आ रहा है ना, फेज डिफरेंस कुछ नहीं, हाँ पीक वैल्यूज में फर्क है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन, जो रेजिस्टर होता है इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कोलिजन्स, इट डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एसी सोर्स। एसी सोर्स कैसा है उस पर डिपेंड नहीं होता। रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होती है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेजिस्टेंस का वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जिस दिन मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। और आप ये चीज दिमाग में रखें कि एसी सोर्स कुछ भी हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, रेजिस्टेंस पे, अपोजिशन पे रेजिस्टर के फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। That is the reason we are seeing that there is no phase difference between the current and the voltage in case of what, a resistor, ठीक है। तब तेरे phasor diagram किसी, what about the phasor diagram, शाबाश, phasor diagram, शाबाश। हमें एंगल कितना लेना है, ओमेगा टी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, that will be I naught, I कितना, this will be ओमेगा टी, ठीक है। लेकिन शाबाश, अगर आपको वोल्टेज अब रिप्रेजेंट करना है, वो वी नॉट उसका पीक वैल्यू है, लेकिन एंगल फिर भी है ना ओमेगा टी, यानी कि इतने ही एंगल पे आप थोड़ा क्योंकि कैसे गुणित हुई, आई नॉट से ज्यादा वी नॉट से कम, चल वी नॉट ये थी, एरो कम आए, एरो की लेंथ कम आएगी ना, तो दिस विल बी वी नॉट, समझ गए ना। दिस इज अ फेजर डायग्राम ऑफ अ प्योर रेजिस्टर, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट, करंट एंड द वोल्टेज are in phase, both increase and decrease simultaneously.
This is because the opposition is only due to the collisions and is independent of the nature of the AC source. Clear अच्छा? सब बातें ये तो लिख ली, बाकी चल लिख ली. ठीक है. चलो तिलवान देखो, ये इक्वेशन से भी हमें समझ आ सकता है दैट वी आर यूजिंग दिस आकिब दबान या ये बोथ आर इन फेज, दैट द करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज. हमने कोई सपोज ईएमएफ सोर्स दिया, ईएमएफ तो वोल्टेज है, कितना है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वो हमने दिया. हम करंट देखना चाहेंगे तो करंट की क्या इक्वेशन आएगी, एंड यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट ओम्स लॉ शोना करंट शासन बराबर शाबाश V बाय R होती ना. रेजिस्टेंस इसकी कांस्टेंट है ना, सो मैं किस वैल्यू में अभी कह रहा था, रेजिस्टेंस इज ओनली ड्यू टू द कोलिजन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द एसी सोर्स. ठीक है. अब यहां पे देखिए V कितना है, हमने यहीं से दिया है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय R. अब देखो समझना मेरी बात, साइन ऑफ ओमेगा टी तो वही है, व्हाट इज दिस V नॉट बाय, दिस इज अनदर कांस्टेंट, मगर कौन सा कांस्टेंट I इज इक्वल टू, हम इसी को I नॉट लेते हैं ना, साइन ऑफ ओमेगा टी. तो इक्वेशन क्या आ रही है, इक्वेशन वही बोल रही है जो वहां पे थी, यानी कि अगर जो वोल्टेज और शुद्ध वहां ओमेगा टी की फेज, करंट में भी फेज वही आता है. अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दे, तो एक और चीज बताता हूं, हमने अभी खुद ही रिप्रेजेंट किया, हमने बोला आई नॉट का पीक ज्यादा है और वी नॉट का पीक कम. अगर इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेशन क्या बना, मतलब कुछ आई नॉट का तो बराबर, आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट बाय आर, वी नॉट बाय आर, यानी कि आई नॉट पीक should come as compared to the voltage का पीक कम है, रेजिस्टेंस है ना ज्यादा. अच्छा ये पढ़ दो डायरी में, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर, वी नॉट का बराबर आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी कि वी नॉट ही आगे होगा और आई नॉट पीछे. अगर आपको एग्जैक्ट दिखाना पड़ेगा देन हम वी कैन रिवर्स देम, वी कैन से आई नॉट तब वी नॉट, शाबाश, तब V नॉट ऊपर आएगा और I नॉट नीचे जाएगा. समझ गए ना. अब ये मैं समझने की कोशिश कर, हम अच्छा होंगे, जस्ट कीप इट एज सच. अब यहां देखो, यहां पर भी उल्टा हो जाएगा, V नॉट आगे जाएगा और I नॉट पीछे आएगा. तो यू शुड पान अस्ताम, बट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि फेज डिफरेंस क्यों अभी जीरो है. ठीक है, हमने वोल्टेज सोर्स यहां से दिया है, करंट की इक्वेशन भी वही बोल रही है कि फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा. फिर एक लीड करता लैग करता, यहां पे कुछ ऐसा नहीं है. दिस इज बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन किस पे, द कोलिजंस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द एसी सोर्स. क्लियर है, समझ गए. चलिए इसके बाद प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट. वही सर तो याद, जिस दिन मैंने आपको फेज डिफरेंस लीड लैग की बात की थी, मैं क्या बने दो इंडक्टर से जो प्रॉब्लम या जो वोल्टेज सोर्स आसान ब्रोट मगर करंट क्या आसान पाथ. ठीक है, क्योंकि हमने वो बैक ईएमएफ का कांसेप्ट इसमें पढ़ा है ना. वो हम आपको से फॉर एग्जांपल मैंने एक एसी सोर्स इस्तेमाल किया अलोंग विद एन इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
हमने जो ईएमएफ सोर्स दिया है दैट इज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये टीचर्स ये मैंने दिया, ठीक है, मैंने दिया। लेकिन आपको पता है इस इंडक्टर में एक प्रॉब्लम है, यू शुड करा बैक ईएमएफ क्रिएट, क्या करा, एंड आपको पता है बैक ईएमएफ के एतबार से सुना एल डी आई बाई डी टी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इफेक्टिवली कैन आई से दैट दिस एल डी आई बाई डी टी, ताकि हम करंट को चला सके, ताकि हम करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे ले सके, आपका जो एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स हो वो कम से कम इतना है कि नहीं, तो वो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू शाबाश ई नॉट साइन ऑफ क्या ओमेगा टी, ठीक है। कितना तेल छु गो मानन मगर हिज कम तेल छु गो मानन डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल यस साइन ऑफ ओमेगा टी मगर डी टी, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, ये तो आपकी स्मॉल करंट तेल का नेट करंट, मतलब नेट करंट का पर आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दो देगा आई आएगा इज इक्वल, ये ई नॉट पे एल तो इधर ही है कि नहीं। चलिए साइन की इंटीग्रेशन बताओ क्या है, माइनस कॉस क्या ओमेगा टी है ना, डिवाइड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगी ओमेगा, समझ रहे हो। अच्छा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं which implies क्या, can I write it as I is equal to minus E naught upon L omega, ठीक है। cos of omega t जो है ना, cos of omega t इसको मैं लिख सकता हूं sin of 90 minus थीटा, है क्या, लिख सकता हूं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा which implies I is equal to मुझे क्या लगा मगजन है जो मैथ है शू ये माइनस ना आपने पढ़ा है, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, कितना होता है साइन ऑफ माइनस थीटा, हाँ इसका माइनस टाइम्स साइन ऑफ पॉजिटिव थीटा, क्या जाता ठीक है, मतलब वो ये समझो अल्लाह। अभी मैं कह रहा था माइनस थीटा कुछ एंगल को, एंगल का पूरा मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन अगर हम माइनस थीटा की बात करें वो कहां से मेजर करना है, फिर क्लॉकवाइज, शाबाश ना एंगल तेलियो कौन साइन ऑफ इस एंगल का, हम बोल रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, मानो ना। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो वो क्या होता है माइनस टाइम्स, आप एंगल ले लेकिन ने क्या मतलब चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, इफेक्टिवली माइनस टाइम्स साइन थीटा। अगर सपोज ये कुछ 30 डिग्री में अगर मैं योग पागा 30 डिग्री, पहले क्वाड्रेंट में साइन था ना पॉजिटिव, साइन 30 लिखता, लेकिन यहां पे लिखना है साइन ऑफ माइनस 30। अब फर्क क्या है फिर इन दो में, फर्क यह है कि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो रिमेंबर साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर आप साइन थीटा ही ले लेकिन फिर उसका नेगेटिव है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अच्छा वन था तो यहाँ पर नजर मगर नहीं सकता हूं इतना साइन ऑफ सम एंगल मगर नेवर कहीं क्या वुझ बगैर से चालाक ये साइन ऑफ इट इज माइनस साइन ऑफ थीटा, हाँ दूसरे बना बह के लिखी थी साइन ऑफ माइनस थीटा, बह के लिखी थी बट साइन ऑफ माइनस, ये माइनस को अंदर थीटा में ये लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, खबर समझ तो रही, समझी तरह चला तेरे खुश कविला मुझे आप बोल आई इज इक्वल टू हाँ ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इनटू साइन ऑफ, हाँ ये क्या बने हुए बने ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, समझ गए है कि नहीं। अब जो इस साइन के साथ यहां पे होता है वो पीक होता है, तो चलेगा आई नॉट एच हस कितना लेखस काय बहुत कसो ये हटा सकता हूं यहां से मैं, हाँ ना अच्छा चलो योगना कसो यहां देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ शाबाश ओमेगा टी माइनस पाई बाई, क्या समझो तरह मगर आई नॉट को तो होते थे, हाँ ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल है कि नहीं। ओम्स का क्या बना करंट आसान बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, टेंशन से माना ये रेजिस्टेंस ओमेगा एल, हाँ देखो यहां से मैं बोल रहा हूं इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर की है इसको एक्सएल लिखते हैं, काची बराबर थे ओमेगा इंटू, मगर है क्या ये शाबाश इट इज ऑपोजिशन,
जो रेजिस्टर अभी था ना, अभी जो हमने इस्तेमाल किया सिंपल प्योर रेजिस्टर, उसमें रेजिस्टेंस आ रही थी, उसमें हमने एसी सोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं लिया, मत लिया, मगर स्विच द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर डिपेंड्स ऑन ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? द इनपुट सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सोर्स. देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग. आपका अपोजिशन इंडक्टर क्या दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? द सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी अपनी क्या थी, ठीक, और नेचर ऑफ द एसी सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी कि ज्यादा थी. चुना था वो डिटरमाइन करा. रेजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था. रेजिस्टर में प्योरली रेजिस्टेंस वाज ड्यूटिफुली, उसमें कुछ भी एसी सोर्स का, मैंने कहा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एसी. लेकिन यहां पे आप देख रहे हो इट डिपेंड्स ऑन द एसी सोर्स. समझी तरह? देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब इक्वेशंस क्या हमारे पास आ गई, जरा बताओ. एक इक्वेशन ये है करंट की, I is equal to I naught sin of omega t minus pi by 2. बेशक ये E is equal to E naught sin of omega t. मैंने कहा जब आपको फेज डिफरेंस देखना हो तो दोनों को या साइन में लाओ या कॉस में लाओ. हमने इसको साइन में रखा था तो करंट भी किस में होनी चाहिए थी? साइन में होनी चाहिए थी. और हम देख रहे हैं फेज के एतबार से इसका फेज कितना? ओमेगा टी. इसका फेज कितना? माइनस पाई बाय 2. छवाना करंट से पास पका. दिस वाज द रीजन. मैंने उस दिन कहा था करंट पीछे चलती है इंडक्टर में, वोल्टेज ही कहां चलता है? आगे चलता है. समझ जरा. चलो दिलवन ग्राफ क्यों थी? ग्राफ व्हाट वी शो ग्राफ क्यों थी? देयरफॉर यहां पे लिखना देयरफॉर, हां, फ्रॉम इक्वेशन, मैं इसको लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन, शाबाश, सेकंड, वी आर सीइंग दैट द वोल्टेज लीड्स करंट बाय किससे? पाई बाय 2. समझ गए कि नहीं? ठीक है. बेथवक याद, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हां, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी as well as the coefficient of self inductance of the coil. ठीक है. The opposition offered by an inductor depends on the nature of the AC source. ये थोड़ा समझ के ना फर्स्ट बार तो ग्राफ क्यों थी गोड़ो ग्राफ पर तो फेल कर रहा हूं वहां से दिल जिगर ग्राफ क्या आएगा ग्राफ की अगर बात करें तो शाबाश हमने अब हमारे पास क्या है शाबाश E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है ना और I इज इक्वल टू क्या आ रहा है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 समझ उतरा तो इस इक्वेशन से हमें समझ आएगा ग्राफ कैसा है कौन सा वोल्टेज का ग्राफ कैसा आएगा V या E विद T हाँ ग्राफ ऐसा आएगा ना ये हो ही ना with some amplitude E naught ये आएगा लेकिन what about this current इच sinusoidally varying मगर इसमें फेज पीछे चल रहा है कितने से पाई बाय 2 से तो इसका मतलब शाबाश ना 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 तुझे याद कॉस से साइनस क्या फर्क है जो कॉस ने किया था वो साइन को अब करना था
तो आप देखो 90 पे कितना आगे चला है अभी, 90 से इधर, यानी कि ये काम, हाँ ये इसने किया होगा, हम शून्य करना, देयरफॉर ये क्या पड़ गया स्टार्ट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे जाएगा इधर, फिर आएगा वो ये इट, ओ सॉरी ये इधर गलती मत इसका, ये पीक इधर आएगा, पीक जो है ये थी 90 पे, ये अभी पीछे ही था, ठीक। इसके बाद इधर आएगा ग्राफ, और उसके बाद ग्राफ जो है इस जगह के लिए इधर आएगा, ठीक है, पर इस जगह के लिए ग्राफ इधर आएगा, चलते जाएगा, ठीक है। ये ब्लू वाला ग्राफ थोड़ा ई नॉट से कम है, क्यों? क्योंकि ब्लू वाला का पीक जो है वो आई नॉट, वो कितना है ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल, तो ऐसा कम, तो देयरफॉर ये कम होगा, इट विल बी ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल व्हिच विल बी आई नॉट, ठीक है। ये पीछे चल रहा है किससे? अगर तो कंफ्यूजन छू तो है कि इस पर विशु किस पर, यहां से देख सकते हो आप, इसका पीक जब आया, इसने तब स्टार्ट किया इन बढ़ा दो पाई बाई टू, ऐसे देखो जब ये t जीरो था, EMF कितना आएगा? जीरो। लेकिन जब यहां पे t जीरो था, ये कितना है? साइन ऑफ माइनस पाई बाई, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस टाइम साइन ऑफ थीटा, माइनस टाइम साइन ऑफ 90, साइन 91, साइन 91, तो ये क्या माइनस आई नॉट, यानी कि जीरो पे ये माइनस आई नॉट है, समझ गए? फिर जब 90 लिखेंगे हम यहां पे, जब टाइम जब एंगल गेस 90, साइन 91, EMF गो मैक्सिमम, EMF गो 90 स्प्रेड मैक्सिमम गो, मगर ब्लू वाले का क्या दलील? हाँ ये साइन जीरो बनेगा ना, आओ ना जीरो शुना ग्राफ थे पद शुद्ध ही थे वो चीज गसान ये जब लाइंस में आप ड्रॉ करोगे ना भाई बराबर तमिस गश्त ग्राफ बराबर, इस वक्त लग रहा है ये क्या बन गया, लेकिन ये ऐसा ही ग्राफ है, ठीक है। या यहाँ पे देखो 180 की बात अब करते हैं, 180 इतनी साइन ऑफ 180, साइन 180 कितना है? साइन 180 जीरो होता है, EMF जीरो आ गया ना, तो एक वो ही जीरो वो नहीं कि रेड वाला जीरो। लेकिन जब यहाँ पे ओमेगा टी 180 दोगे, 180 माइनस 90 साइन 90 1 मैक्सिमम, तो ये है ना मैक्सिमम, समझ गए? Therefore, the graph will be somewhat like this. अच्छा, what about the phasor diagram? वहां से phasor diagram, शाबाश। कौन सा पहले ड्रॉ करेंगे? पहले E नॉट ही, तो चाहिए E नॉट, पीछे से ओमेगा टी H हर्ज प्लस 53 करंट कर क्या ग्राफ, शाबाश। वैसा जो हमने अभी किया था, दिस विल बी I नॉट, एंड ये एंगल कितना, ये ऐसे आप लिखते हैं ना, कितना है? ओमेगा टी माइनस, समझी तरह क्लियर है? इसे तो फेज रहेगा, समझ रहे हो? चलिए लास्ट कैपेसिटर, ऐसे जरूरी करो क्या है वो पास करे तो शुनास होमवर्क सतानु आज चलिए कैपेसिटर पे आते हैं। हाँ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट।
प्योर कैपेसिटिव सर्किट। चित्रियम प्योर कैपेसिटिव सर्किट। देखो यहां से प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास एक एसी सोर्स होगा, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा होगा, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी। ठीक है ना बेटा, से फॉर बंकर भी थी वो भी, आई बी यूजिंग एन ईएमएफ सोर्स। ठीक, मैंने ईएमएफ सोर्स इस्तेमाल किया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई अगर मैंने ये वाला ईएमएफ सोर्स दिया तो करंट को क्या होगा। ठीक है, तो ला पूछो, रजिस्टर में हमने देखा करंट और ईएमएफ फेज में आ रहे थे, इंडक्टर में देखा वोल्टेज आगे था, करंट क्या निकला पीछे। अब इसमें देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक, जरा यहां से देखो, डू यू नो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है Q इज इक्वल टू सी वी, मगर V क्या है, E। हमने ईएमएफ इसको ही किया था, तो Q इज इक्वल टू सी, E के बदले क्या लिखूं, E नॉट, शाबाश, साइन ऑफ। तब मैं मतलब करंट का सम बराबर करंट I किसके बराबर होती है, I dq by dt। इंस्टेंटेनियस समझ लो, q by dt चलिए फिर dq by dt समझिए तरह तरह तिरवान विच इंप्लाइज, हाँ करंट किसके बराबर आएगी, d by हाँ dt ऑफ किसकी, c e नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। समझ रहे हो, जरा बताओ, हाँ विच इंप्लाइज I विल बी इक्वल टू कांस्टेंट क्या है थे, c थे e नॉट d by dt ऑफ शाबाश साइन ऑफ ओमेगा टी। समझ रहे हो, प्लस वन I इज इक्वल टू हाँ सी ई नॉट हाँ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी है ना, मगर इंटरवल भी होगी, इनटू डिवाइड मल्टीप्लाई या डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, विच इंप्लाइज तला मानते हैं ओ मगर तक I इज इक्वल टू हाँ मैं लिखूं ऐसे ओमेगा सी, हाँ ओमेगा सी ई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बच्चों विच इंप्लाइज, तो मैं दिखा तो करवा आप ट्रिक, I इज इक्वल टू मैं इसको लिखूं ऐसे ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा सी किसी वापस कर दी मैंने, ठीक, इंटू कॉस ओमेगा टी है ना, मैं इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90। कोई समझ प्रॉब्लम, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा, कोई इशू तो नहीं। ठीक है, देयरफॉर अब देखो अच्छे से समझना, विच इंप्लाइज I विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय दिस सी जो कांस्टेंट, ओमेगा हम जो सोल्व वो भी कांस्टेंट, इफेक्टिवली सारा मैं लिखूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, करंट आज के वोल्टेज साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट कैसे हो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसको माना करंट से बोन पका ये भाई का तो से भी तम बना लीड लैग की बात, लेकिन आज हम प्रूव कर रहे हैं कि पॉइस पर छाती कितना समझे तरह तरह दिलवान आकर I नॉट का क्या बराबर, विच इंप्लाइज I नॉट किसके बराबर आया, हाँ E नॉट डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा सी, मगर करंट होती है बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो है 1 बाय ओमेगा सी, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या सुना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आप देख रहे हो ये फर्क, ये लीड लैग का मसला क्यों आ रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर में, दरअसल वजह यह है कि जो रिएक्टेंसेस है यार, ठीक है, कौन कौन रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप देख रहे हो दोनों किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, द नेचर ऑफ द एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, एंड ऑफ कोर्स द कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस इन चीजों पे डिपेंड, यहां पे इट डिपेंड्स, वहां पे डिपेंड नहीं कर रही। समझिए तरह दिस इज कॉल्ड एज क्या बना, हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन ओमेगा एज वेल एज सी। ठीक है, दिस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब जरा खुद देखो, करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वोल्टेज कितना, सिर्फ ओमेगा टी, ठीक है तुम्हारा, हाँ
करंट लीड्स क्या ई बाय कितना पाई बाय करंट इज अप्रूव्ड वोल्टेज क्या छी मतलब गोड बना डायग्राम पत्र फेजर थी शाबाश करो गोड तरफ फेजर ना गोड बना डायग्राम ये ग्राफ पत्र फेजर डायग्राम शाबाश अगर तुम सनी में देखो ना हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लैंप शुगर सिंपल सा एक लैंप वो जबरदस्त चीज इस लैंप पे रेजिस्टेंस लिखी होती है मगर कौन सी वाली आर वाली एक्सएल और एक्ससी नहीं लिखा होता माशा लिखी तिक्याज रेजिस्टेंस विल बी या आपके जो मोबाइल चार्जर्स है उनमें कैपेसिटर या आपके फोन है तब कैपेसिटर लगे तिम करन ना ऑपोजिशन ऑफर करन ना मगर जांचा लिखित यह यूता अपोजिशन कर ऑफर क्या हीटर की कॉइल अच्छा सा लिखित जा अच्छा रेजिस्टेंस के क्यों नहीं लिखी होती कोई बताएगा शाबाश हीटर की कॉइल है रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिखी होती उस पे एक्सएल क्यों नहीं लिखा होता है उस पे हाँ किस पे एसी सोर्स पे अब किस कमरे में आपने क्या वोल्टेज रखा है वो उसको कहां पता है बिकॉज दे वेरी आर ही कांस्टेंट कोलिजन पर डिपेंड इसमें तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर में उसकी वजह से ऑपोजिशन है ठीक है उसमें आपको बैक ईएमएफ की कांसेप्ट है उसमें उसकी वजह से अपोजिशन है लेकिन ये अपोजिशन डिपेंड कर रहा है किस पे जो आपने नेचर ओमेगा लगा दिया समझ गए देयरफॉर दे आर नॉट मेंशन्ड ओवर योर अप्लायंसेस ठीक है तो ग्राफ 3 जल्दी पाऊंगा लेट है पाऊंगा जल्दी आप आज घर जाओगे और आप एक काम करोगे काम यह है कि आप रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या सुना रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव इनके दरमियान 10 डिफरेंसेस लिखोगे समझो जरा कितनी डिफरेंसेस पर डिस्कस बट यू हैव टू राइट इट एट होम आटा बनाई 3 हिस्से कर लेना एक साइड रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड देन इंडक्टिव कैपेसिटेंस ठीक है दे आर नथिंग बट ऑपोजिशंस ठीक है अच्छा यूनिट्स भी देख लेना यूनिट्स इसके ओम ही है ना रेजिस्टेंस ही आप देखोगे ओम दोनों केसेस में आ जाता है ठीक है अच्छा चला ग्राफ में क्यों थी हमारे पास क्या क्या इक्वेशन थे जल्दी बताओ हाँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी करंट क्या रहा मगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ हाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ग्राफ बढ़ क्या तरह E कैसा आएगा ये आएगा ना आप में इशू के तो तेरे बाद करंट खतरे क्या हाँ ये कॉस का ग्राफ आएगा ना क्योंकि यहां पर आया था कॉस ऑफ ओमेगा टी हमने उसी को चेंज किया था इफेक्टिव इज द कोसाइन ग्राफ मगर भाई हमने एच बी टी किया करंट ना थोड़ा मैग्नीट्यूड आसान कम है ये अगर ई नॉट है तो आई नॉट इधर की तरफ होगा और ग्राफ जो है ऐसे आएगा इधर फिर जब यहाँ है इसको मैक्सिमम होगा इधर फिर जब इसका मैक्सिमम है इसको मिनिमम है इधर समझ गए ठीक है व्हाट अबाउट दिस फेजर डायग्राम शाबाश मान फेजर गॉड को सूत्र हो उदाहरण मानो ई डालेंगे पहले तो ई ओमेगा टी ऐसे आएगा ई नॉट दिस इज ओमेगा टी समझ रहे हो ठीक है और इस तरह करंट कहां की तरफ दिखाएंगे शाबाश 90 आ गए है ना I naught and this angle will be pi by overall everything pi by 2 plus omega. Clear? This is the phasor diagram. समझ आ गया? समझ तो रहा? Phasor समझ आ गए? अब हम इनके साथ खेल सकते हैं ठीक है कंबाइन करो but the शर्त is I want you people you try to first of all understand कि phasor छू गया तो phasor की मदद से हम एनालिसिस कितना आसान कर सकते हैं This is graphical analysis सुना
अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में चले जाओगे बहुत डिफिकल्ट है। फेजर्स आ गए ना डालने, क्वेश्चन कैसे पढ़ सो, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये फेजर्स क्लियर हो गए, ठीक। चलो आई स्टॉप हियर विद द होप कि आप ये 3 डिफरेंसेस लिख के लाएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है। आई स्टॉप हियर। पगा जोड़ वख वन कॉम्बिनेशन में